So new topic is 15.4, double integral in polar form. Double integrals in polar form. Polar forms means a point can represent, in r comma theta form. This is the polar form where you are moving angular distance theta and radial distance r. So this point P is called, P has coordinates r comma theta. This is called your initial axis. We take we take angle theta in the anti-clockwise direction from the positive x-axis, and this is the radial distance r. So now how to find double integral? We will derive one formula, because sometimes it is easier to find double integral using polar coordinate. So here now I will take suppose function f r theta. F r theta is a function. This is defined over some region r. This is defined over a region r, and r is given to you in terms of region in terms of r theta. Suppose theta lying between alpha to beta. This is your theta, and r is lying between radius between g1. If r is radius a, so this is lying some between g1 theta to g2 theta. So r in terms of theta I am taking, and theta is in terms of alpha beta. ठीक है, r को थीटा के टर्म्स में दिया है, जैसे y को x के टर्म में ले देते हैं, x सम a b, सेम थिंग है, थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा कुछ एंगल है, r जो है वो थीटा के टर्म्स में. So here we can derive the formula, Riemann sum formula. How? Suppose you have some, if I am plotting it, suppose it is like this. This is your x-axis. So this is angle alpha beta. This is theta is equal to alpha. This is theta is equal to beta. इस बीच में आपका कहीं रीजन, सपोज कुछ रीजन आर है, ये दिस इज द रीजन, ये रीजन आर है. दिस कर्व इज सपोज g1 थीटा, r is equal to g1 theta. This is your r is equal to g2 theta. So this is the region r, capital R. इससे अगर हम रीजन को दें, this is region R. So what I will do here, you will divide this in some grids. You can say circular arcs and rays. I can divide it into, जैसे हमने rectangular grids लिए थे या उसमें cartesian form में, you got blocks. Here also I can take, suppose this is your this is lying in between this. Here you have, this is origin, and I am dividing this like this. इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं सम m is grids में, है ना, and you can have like this. इस बीच में अगर मैंने के लिए है,
इस तरीके से I can plot the region. Okay, is it clear? This is the, और ये आपका कुछ रीजन आता है, इसे हम रेड कलर से दे देता हूँ. This is your region R. इस कर्व के बीच में हमें निकालना है. सपोज okay. So here same process I will take. Okay, you have divided it into some distances. Suppose it is your delta R. Distance twice delta R, thrice delta R. They are equidistant, and here I will choose any arbitrary block, arbitrary this grid है ना. Suppose here its angle is how much, तो यहाँ पर क्या है इस grid का, ये angle है, this is angular distance, this is radial distance. Suppose this is your delta theta, this is your delta R, and this is any arbitrary point whose coordinate is how much, RK comma theta k. So the area of this small will be what, delta AK is the area of this small. Suppose इसका area delta AK है, delta AK ये एरिया है इसका, है ना. यहाँ ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ध्यान रखना. ये क्या है, एक आर्क जो बन रहा है ना, तो इट इज नॉट रेक्टेंगुलर बॉक्स. डेल्टा थीटा इज द एंगल एंड डेल्टा आर इज द डिस्टेंस. सो इसको हम क्या कह सकते हैं, यू कैन से इट्स ग्रिड, a small grid. So what is the revised system I can write? Sn. Sn can be written as summation. Agar suppose there are n grids like this, so what I can write? K is equal to 1 to m. Sn ले रहे हैं, K is equal to 1 to n f of r k theta k delta a k. Okay, and when I will take, I will large my n up to infinity. Suppose it will give you the value of this double integral provided limit exists. Limit n tending to infinity Sn. Limit n tending to infinity Sn. This value will be double integral r f of r theta dA. So now I motive, now our motive is to finding this dA. This is our motive, how to find dA. डीए की वैल्यू, डीए क्या होगा, डी आर डी थीटा टर्म्स में आएगा, क्योंकि फंक्शन आपका थीटा में है, तो डीए विल बी इन टर्म्स ऑफ डी आर डी थीटा. लेकिन यहाँ पे मैं डी आर डी थीटा नहीं लिख सकता ऐसे, बिकॉज इट इज नॉट डी आर डेल्टा डेल थीटा. एरिया इज नॉट, इट इज नॉट रेक्टेंगल, है ना. ये क्या है, एक स्मॉल सेक्टर सा बन रहा है. तो आई विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस. हाउ, देखिए हियर आई हैव टू डू सम ज्योमेट्री. तो इसको अगर हम प्लॉट करें अलग से, दिस सेक्टर आई कैन राइट, यू सी हियर आई एम प्लॉटिंग दिस सेक्टर. तो ये आपका जो ये दिस इज योर केथ ग्रिड, ये ग्रिड थी. ओके, तो हेयर इफ यू वांट टू फाइंड, ये एरिया हमें निकालना है, डेल्टा ए. दिस इज योर डेल्टा ए, दिस आई वांट टू फाइंड. तो ये एरिया कितना होगा, अगर हमें डेल्टा ए के निकालना है, दिस इज योर सेक्टर्स, क्या होगा एरिया बताओ. अगर यू नो दिस इज, सर थीटा पता हो तो थीटा अपन 360 इंटू पाई स्क्वायर हो जाता है. हाँ नहीं, थीटा तो हमें थीटा टर्म में निकालेंगे हम, कोई बात नहीं. देखो यहाँ पर होगा क्या, डेल्टा ए के, डेल्टा ए के का मतलब ये क्या होगा, सेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे ना. जो आप फॉर्मूला लगाते हैं वो सेक्टर का एरिया निकलता है. तो डेल्टा ए के कितना होगा, एरिया ऑफ, ये आपका एक लार्ज सेक्टर है सपोज, और ये स्मॉल सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर. तो दिस एरिया विल बी हाउ मच, एरिया ऑफ
लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्मॉल सेक्टर। सेक्टर। ये तो करोगे, ये करना है हमें। एरिया आपको मालूम है, एरिया क्या होता है फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 थीटा आर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ अ सेक्टर जिसकी रेडियस आर है। अगर किसी सेक्टर की अगर रेडियस आर है और एंगल थीटा है तो क्या होता है एरिया? हाफ थीटा आर स्क्वायर। यू नो दिस थिंग। जैसे अगर आपके पास पूरा सेमी सर्किल होता है तो थीटा कितना होता है यहाँ पे? पाई। यहाँ रख दीजिए, क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर बाई 2। फुल सर्किल में थीटा 2 पाई, 2 पाई रख देते तो 2 से 2 का पाई आर स्क्वायर। इट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एनी सेक्टर, हाफ थीटा आर स्क्वायर। तो अगर हमें इसका थीटा और आर पता है, आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर एज वेल एज एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो हमने इसे कैसे कंसीडर किया? आई हैव कंसीडर्ड इट हाउ। देखो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया था बिल्कुल सेंटर में। सपोज दिस इज द पॉइंट व्हाट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? आर के कॉमा थीटा के, ये तो लिया था। इट मीन्स व्हाट कि एंगल तो आपका ये हाउ मच, दिस इज द एंगल, एंगल इज थीटा के। एंगल तो हमें पता है थीटा के। और ये डिस्टेंस आर के डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से, इफ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट टू दिस, ये डिस्टेंस कितनी है? आर के। ओके, तो इफ इट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, और ये डिस्टेंस कितनी थी? ये पूरी डिस्टेंस कितनी ली है मैंने? कितनी है ये? डेल्टा आर, है ना? तो यू नो कि अगर लार्ज सेक्टर के लिए आर के कितना होगा, लार्ज सेक्टर का रेडियस कितना होगा बताओ? इसको आई कैन से डेल्टा आर बाई 2 बिकॉज इट इज एग्जैक्टली हाफ। तो आई कैन से दिस इज योर डेल्टा आर। तो ये डिस्टेंस कितनी है? डेल्टा आर बाई 2, डेल्टा आर बाई 2। सो रेडियस ऑफ लार्ज सेक्टर आई विल बी टेकिंग कितना? आर के प्लस डेल्टा आर बाई 2, इतना ले सकते हैं ना अप्रोक्सीमेटली। इतना डिस्टेंस और ऐड हो रही है। दिस इज एक्जैक्टली डेल्टा आर। ये पॉइंट हमने अगर बिल्कुल सेंटर में ले लिया, आई एम कंसीडरिंग दिस पॉइंट एट द सेंटर बिकॉज आई कैन चूज आर्बिट्रेरी पॉइंट। So I'm choosing exactly at the center of this grid. So this will be the radius of large sector. What is the radius of small sector? बताइए। स्मॉल सेक्टर की रेडियस कितनी होगी? आर के, और ये क्या कर दे? माइनस माइनस डेल्टा आर बाई 2। है ना, माइनस डेल्टा आर बाई। ये यस स्मॉल सेक्टर की रेडियस आ गई माइनस डेल्टा आर बाई 2, लार्ज सेक्टर की प्लस डेल्टा आर बाई 2, क्योंकि ये आर के डेल्टा आई हैव कंसीडर एट द सेंटर ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट। सो दिस इज द रेडियस। तो अब आपको रेडियस पता है, एंगल तो दोनों का सेम है, so I can put in the formula. So you got, so डेल्टा ए के जो एरिया का फॉर्मूला था, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, तो हाफ थीटा के एंड आर के प्लस डेल्टा आर बाई 2 होल स्क्वायर माइनस हाफ थीटा के कॉमन ले लीजिए, आर के माइनस डेल आर बाई 2 होल स्क्वायर, है ना? ये डेल्टा ही आ जाएगा। I am putting it in this formula. Delta A, area of large sector minus area of small sector. So half theta k is common. This you can solve. कितना आएगा जरा देखिए, ओपन द स्क्वायर। तो आर के स्क्वायर प्लस डेल्टा आर बाई 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर के डेल्टा आर बाई 2, 2 is cancel out, माइनस आर के स्क्वायर प्लस बाहर माइनस है तो माइनस, एंड माइनस आएगा माइनस 2ab, माइनस इज ऑलरेडी देयर, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 से 2 कैंसिल, यू हैव आर के डेल्टा आर। यहाँ ये समथिंग some terms will be cancelled out, this goes off, this goes off, so how much you have? कितना हो गया भाई?
ट्वाइस आर के डेल आर, और एक हाफ था तो हाफ इज कैंसिल आउट, तो यू गॉट आर के डेल्टा आर। नहीं, एंगल कितना दिया था हमने, एक मिनट, एंगल कितना था ये, एंगल डेल्टा थीटा था, है ना, एंगल वाज डेल्टा थीटा, ये जो एंगल है डेल्टा थीटा एंगल है ना, थीटा की तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो एंगल वाज डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, नॉट थीटा की, डेल्टा थीटा, so r के डेल्टा r डेल थीटा, दिस इज डेल्टा ए के, डेल्टा ए की वैल्यू निकल आई, सो इन रिमार्जियन सम दिस विल बी हाउ मच, ये जो था समेशन k इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ r के थीटा के, डेल्टा ए की वैल्यू आई कैन राइट r के डेल्टा r डेल थीटा, so is double integral is how much, limit n tangent to infinity sn, this equal to double integral r, अब जब n tangent infinity को I can take arbitrary point r comma theta, r के I can write r dr d theta, so this is the double integral value, so here the term extra what is coming, देखो r dr है ना, r dr term आएगा, 1 r extra is here because of this, कार्टेशियन में क्या था, सिंपली fx y dx dy था, है ना, लेकिन यहाँ पर एक r का टर्म और मल्टीप्लाई में आएगा, so if you are to keep in mind, if you are changing Cartesian to polar, this r will always there extra r because of this, so this is the formula in terms of polar form, so theta you can write alpha to theta, अगर लिमिट रखेंगे r की लिमिट I will be taking in terms of theta, g1 theta to g2 theta f of r theta r dr d theta, this is the formula for fr theta, this is double integral formula, okay, keep in mind this r, so limit, how to find a how to find these limits, I will take one problem, how to find limits, क्योंकि limit is important, finding limits of integration, limits of integration, first thing is same, first step is sketch the figure, so suppose one figure is given to you, I have considered one example, this is the figure, r is given to you, that it is lying between this, and y is equal to root 2, y is equal to root 2 and x square plus y square is equal to 4, ये गिवन है आपको, the region is lying between this circle and this line, ये पॉइंट आ जाएगा root 2 comma root 2, suppose this was the r which was given to you, okay, above the line y is equal to root 2 and inside the circle, तो ये this will be the common region, ये स्केच करनी है आपको, गिवन है, स्केच हमने कर लिया है, तो फर्स्ट थिंग इज आई विल राइट इट इनटू पोलर फॉर्म, तो इफ यू विल राइट इट इनटू पोलर फॉर्म, तो क्या होगा भाई, व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस, इसी को अगर हम पोलर में रिप्रेजेंट करें तो हाउ आई विल रिप्रेजेंट, इन्हें पोलर में चेंज करेंगे पहले इसको, यही फिगर, तो y इज इक्वल टू रूट 2 इन पोलर में क्या होगा बताइए, y इज इक्वल टू रूट 2, यहाँ पे से मुझे पोलर में लिखना है, this r is sin theta equals to root 2. r sin theta is equal to root 2 because x equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, sin theta से अगर हम डिवाइड कर दें तो r is equal to root 2 cosec theta, so this is your r is equal to root 2 cosec theta, this is the r limit, और सिमिलरली इसको भी r के टर्म में लिखेंगे,
It is how much in terms of r? R square cos square theta plus R हाँ, square sin square theta is equal to 4. तो कितना हो गया? equals to 4. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर R स्क्वायर square होता है, common. तो आर Yes, स्क्वायर इज sir. इक्वल टू 4. आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है ना. तो दिस इज योर आर इज इक्वल टू 2. ओके, ये हमने लिख दिया. ये सर्किल की फॉर्म है. सर्किल आर इज इक्वल टू 2. सो आर इज इक्वल टू 2 इट्स अ सर्किल इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म. पोलर में सर्किल की इक्वेशन आर इज इक्वल टू 2 होती है और लाइन की इक्वेशन वाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये होती है. दिस इज योर sketch in terms of r. The first step is done. Second is finding the r limit. R limits. Finding r limits. So r limits में how I will find r limits? You know, I will draw a ray. हम लिमिट्स कैसे निकालते हैं? जिसकी लिमिट निकालनी होती है उस डायरेक्शन में एक रे ड्रॉ करते हैं, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में. तो इसमें आपके पास आर कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा ओरिजिन से. तो आई विल ड्रॉ अ रे इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन. इंक्रीजिंग डायरेक्शन क्या है? आर की है और ये रीजन है. तो रे ऐसे ड्रॉ करेंगे कि इट इज एंटरिंग हेयर इन द रीजन एंड देन इट इज लीविंग हेयर द रीजन. ड्रॉ रे है ना, फ्रॉम ओरिजिन कटिंग थ्रू आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर. So in the direction of increasing r, where it enters, that is your initial point, initial limit. Where it leaves, that is your final limit. ये lower limit है, ये upper limit है. ठीक है. Same thing, draw a ray in the increasing direction of r. So here lower limit of r is equal to root 2 cosec theta and upper limit is r is equal to 2. तो r को थीटा के टर्म्स में लिखना है. ये थीटा के टर्म्स में, ये भी थीटा नहीं है यहाँ पे, तो ये 2 है, ये भी थीटा के टर्म्स में ही है. Theta is not there, so r is equal to 2. So here lower limit is r is equal to root 2 cosec theta and upper limit is r is equal to 2. Then next thing is finding what? Limit of theta, है ना? Third step. Finding theta limits. Finding theta limits. So here what I will do? Now I will see that ये जो आपके पास एंगल है, ये रे है, रे एल, इसको एल लेते हैं. ये this is the region R. So the smallest and largest angle theta this ray will be making. क्योंकि theta क्या है? Theta means angle from x axis. So how much smallest angle? We will see. Find the smallest and largest angle theta that bound r, जो r को बाउंड कर रहा हो, इस r को. तो इसको आप देख सकते हैं कि अगर if I will plot it, so here smallest कितना होगा? नीचे जाऊंगा, that will be smallest. If I am going towards this, तो smallest तो this will be smallest angle, है ना? Suppose theta is equal to, तो ये स्मॉलेस्ट एंगल कितना निकाल सकते हैं आप? यू कैन फाइंड इट. ये पॉइंट कितना था? √2, है ना? क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो इट विल लीव द रीजन. रीजन को लीव नहीं करना है. तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताइए? √2, है. इट मींस व्हाट? x पर √2, y पर √2. हाउ मच एंगल इज कमिंग? tan थीटा इज हाउ मच? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो थीटा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? याद होगा, थीटा वाज tan इनवर्स y upon x, है ना? X upon Y. y upon x, x upon y नहीं, Sir, y X upon x. upon Y. Okay, sir. ये होता है ना, x इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा. अब करो डिवाइड, क्या आएगा? y upon x. तो y upon x कितना है? y √2, दिस इज √2.
So tan inverse 1, how much? Pi by 4. So this is your lowest angle, pi by 4. And maximum how much it can go? Maximum it can go up to this. ये कितना है? Theta is how much here? Pi by 2. So lowest angle here, theta is equal to pi by 4, and largest angle, theta is equal to pi by 2. So here the double integral, in this case double integral f of r theta dA, this will be how much? Double integral theta is lying between pi by 4 to pi by 2, r is lying between कितना था? √2 cosec theta to 2 f of r theta, जो भी दिया होगा आपको, r dr d theta. This will be the value. Is it clear? बोलिए. Yes, sir. Good. So in this way you can find it. Let us take one problem. Example 1. Find the limits of integration. Find the limits of integration for integrating f of r theta over the region R that lies inside the cardioid R is equal to 1 plus cos theta, and outside the circle R is equal to 1. Okay. So here you have to find the limits of integration for integrating over the region that lies inside the cardioid. देखो ये cardioid है ये. There are some forms in polar form cardioids. You should know the standard figures of cardioid, lemniscate. There are different figures. ये कार्डोइड कैसे बनता है? देखो अगर आप प्लॉट करेंगे R is equal to 1 plus cos theta. If you will plot it, its figure will be like this. This is your R is equal to 1 plus cos theta. अगर R is equal to 1 minus cos theta होगा, it will become on the right hand side. अगर ये 1 minus cos theta होता तो ये इस तरीके से बन जाएगा ना. बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है अबाउट एक्स एक्सिस. अगर 1 plus sin theta होगा तो it will become like this towards y, and 1 minus sin theta towards down na. It is 1 minus cos theta. It is 1 plus sin theta. So this is called cardioids. 1 plus cos theta is this. So that lies inside the cardioid, इसके तो अंदर, and outside the circle R is equal to 1. R is equal to 1 circle कैसा होगा? It's a circle, you know, in polar form, whose radius is 1 and center is at the origin. So here if you are taking 1 plus cos theta, देखो, so what is the value of this? यहाँ पर theta की value, what is the theta here? You can see here theta is 0. तो थीटा 0 पे R is 2, तो ये आपके पास 2 है. दिस डिस्टेंस इज 2. तो 1 जो आएगा, R is equal to 1 इज अ सर्किल. तो दिस इज अ सर्किल. सर्किल प्लॉट कर लेते हैं. सर्किल इस तरीके से आएगा आपका, बल्कि इसे क्रॉस करेगा सर्किल, यहाँ से होता हुआ जाएगा.
एक मिनट, ये तो कार्डवाइड तो ठीक हो गया। दिस वाज योर, this is your cardioid and this is your circle, इसको क्रॉस करेगा सर्किल। दिस इज सर्किल r is equal to 1 है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है आपके पास, you can find here theta is how much here, pi by 2, theta pi by 2 पे r is 1, तो ये वन डिस्टेंस है। दिस इज योर वन डिस्टेंस, थीटा इज माइनस, इट इज माइनस पाई by 2, so it is also 1। so क्या आएगा भाई, कौन सा एरिया आएगा आपको बताइए, इनसाइड द कार्डोइड एंड आउटसाइड द सर्किल, सो विच रीजन इज देयर, दिस वन, है ना, Yes. ये है। यहाँ पर आपको इसकी लिमिट्स निकालनी है, तो लिमिट यू कैन फाइंड इजीली इस रीजन में। हाउ आई विल फाइंड द रीजन, आई टोल्ड यू दैट ड्रॉ अ लाइन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस रीजन की तरफ, दिस इज योर रीजन आर, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, कहीं पे भी ड्रॉ कर देते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ करी, दिस इज रीजन आर, it is the lower limit, it is the upper limit, so here you can find the limit of integral is, so how much, r is equal to 1 to this, it is how much, 1 plus cos theta, f of r theta r dr, और d theta, थीटा की लिमिट क्या है बताओ जरा, थीटा यू हैव टू सी कि कितना मूव कर सकता है इस रीजन में, तो थीटा कैन गो अप टू हेयर, है ना, दिस इज द, यहाँ तक है ये रीजन, ये एंड अप टू हेयर, सो हाउ मच, दिस कैन गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या लिख सकता हूँ थीटा को मैं, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, है ना, इधर आएगा क्लॉकवाइज में, इधर एंटी क्लॉकवाइज, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, है ना, दिस इज, तो थीटा विल बी गोइंग हेयर माइनस पाई बाई 2, थीटा गोइंग अप प्लस पाई बाई 2, इससे अगर आप बाहर जाएंगे इट विल लीव द रीजन, वी विल हैव टू stick ourselves on the region R. So this is the lower limit, this is the upper limit. Is it clear? Yes. So you can find the limit in this way. So this is the limit. अब इसमें f r theta given होता तो हम इसे solve कर सकते थे। Area का formula you can find area in polar form. Area in polar coordinates. Area कार्टेशियन में मैंने क्या बताया था आपको? क्या करते हैं if you want to find the area? Sir, fxy, fxy equal to 1. हाँ, यहाँ पर एफ आर थीटा को 1 रख देंगे, तो एरिया विल बी डबल इंटीग्रल आर, जब एफ आर थीटा 1 रखा तो क्या बचा, आर डी थीटा, है ना, दिस इज द एरिया। जैसे अगर आप सर्किल का एरिया निकालना चाहे, यूनिट सर्किल एरिया, सपोज आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू 1, आई वांट टू फाइंड द एरिया, तो एरिया सर्किल का क्या हुआ, देखो यहाँ पर बिकॉज इट इज सिमेट्रिक, तो आई कैन टेक 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 0 टू 1 आर डी ये तो करोगे, एक पार्ट का निकाल लीजिए, इसका 4 टाइम्स कर दीजिए, इस पे थीटा कितना है 0 टू पाई बाई 2 एंड आर इज हाउ मच, आर इज एंटरिंग फ्रॉम हेयर 0 लिविंग फ्रॉम हेयर 1, इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे देखो क्या आएगा, 0 टू आर इज हाउ मच, आर स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई 2 डी थीटा, 1 बाई 2 का कितना हो गया 2, थीटा इज हाउ मच, कितना पाई बाई 2, सो हाउ मच इट इज कमिंग पाई तो है इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर से, ओके, so this is the formula for finding the area. Find the area enclosed by one problem. Example 2, find the area enclosed by the lemniscate
लैम्डी स्केट की इक्वेशन होती है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। ठीक है, लैम्डी स्केट कैसा दिखेगा ये? इट विल बी लाइक दिस सिमेट्रिक फिगर, symmetric about x-axis here, symmetric about y-axis. This is called lambda scale. 4 sin 2 थीटा होगा तो about y-axis हो जाएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक है, ये तो मैंने राइट हैंड से प्लॉट करा है। सेम जितना एरिया ये है इतना एरिया ये। सो हियर योर स्क्वायर इक्वल टू 4 cos 2 थीटा स्क्वायर में होता है। यू कैन फाइंड एरिया। अब एरिया निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, जैसे सर्किल के लिए किया था 4 part because it is symmetric 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 symmetric, so area I can take 4 times of this first है ना, area of this figure in the first quadrant, so area I can write 4 times of this r dr d theta। अब लिमिट की बात करें तो here it is entering from here, so r is equal to 0 leaving here, so it is r स्क्वायर है बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट विल बी पॉजिटिव। कितना होगा 2 अंडर रूट cos 2 थीटा। सो दिस इज योर अपर लिमिट 2 अंडर रूट cos 2 थीटा। अच्छा एंगल कितना होगा देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 थीटा इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम एंगल कितना होगा ये बताओ। here you can have this is the maximum value and this is the minimum value। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू तो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ये कितना होगा, ये होता है π/4, 0 to π/4, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर आता है ये कर्व का, ये π/4 एंगल आएगा। दिस इज π/4 है ना, और नीचे कितना होता है ये भी π/4, इसे -π/4 कर देंगे नीचे। बट आई एम टेकिंग ओनली फर्स्ट का लेके आपने 4 टाइम्स कर दिया है, तो आई एम टेकिंग 0 to π/4। अगर आप -π/4 से +π/4 लेंगे तो यहाँ ट्वाइस कर देंगे क्योंकि आपके पास 2 पार्ट्स आ गए, लेकिन आई एम टेकिंग ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा 0 to π/4 दिस, इसकी वैल्यू सॉल्व करके इट विल बी कमिंग 4। ओके, इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू। अच्छा, अगर चेंजिंग कार्टेशियन टू पोलर करना होगा तो क्या होगा,